introduce new products within this segment, but also our intent is to create awareness and continue with our endeavor that the exchange is it's a core activity with the exchange that we want to undertake. And what better than market participants and market people from research or people who are experts in those particular products to kind of create this awareness on part of the exchange and help the exchange kind of build more awareness on options as a tool. Of course, options is considered, I would say, in inverted commas, considered to be a more difficult and complicated tool, but if well understood, it is not difficult, it is not complicated, it is fairly simple, and I believe that's a universal truth for all our set of products that we use as financial tools. And today is an attempt and effort that we are trying to kind of introduce options to all our set of participants again. And we will continue to do this till the time we reach a level where the natural participation and understanding is up to a particular level. We are seeing a similar, trajectory in the equity markets. We hope to see that in the commodity markets also. Our topic or title for the event today is Commodity Options, an effective tool to capture opportunities in the commodity markets. We have experts from the markets who would be a part of this panel discussion. And I'll introduce each of the panelists to the audience. So today, as your moderator or key host, I'd like to welcome Mr. Ajay Kedia. And he has always been on this side of the table where he has been a panelist, but today we decided to kind of also utilize his understanding of the subject to kind of to cull out the maximum from our set of panelists that we have here. So Ajay, welcome on board. He is the director with Kedia Advisory and has been a key a person in the consulting industry with respect to commodities. He has also been a voice that has always supported us while we are introducing new products, helped us been our extended arm to kind of communicate and talk about these set of products to various set of market participants. So welcome on board, Ajay. With me, we have such a new set of panelists also, but before, I introduce the rest of the panelists, I'd like to definitely thank CPI, Mr. Narendra Vadva for, being our support to connect the market participants with the exchange, and also, being a partner in this endeavor that the exchange is embarking on every now and then. So welcome, sir. Welcome, Mr. Narendra Vadva. Let me tell you all the participants let me just communicate one thing to all the participants, that all our panelists that are there with us today have been associated with the financial markets and commodity markets for that matter beyond 2 decades and almost 2 decades or just about over 2 decades. We have few veterans with us as well. So, before I move ahead, I'll introduce the rest of the panelists as well. I'd like to invite Mr. Nitin Sahi. Mr. Nitin Sahi is the director with FinDoc, and he has been, I think, one of the key participants that have been on the exchange who has not only supported the exchange with new set of products, but has also been a voice that has been, constantly advising, guiding the exchange into pockets where these products can be developed in the ways in which these products can reach out to maximum set of audience. So welcome on board, Mr. Nitin Sahi. Then I have Mr. Anuj Gupta. Anuj Gupta is a vice president leading research at India Infoline. He has been, I believe, one voice that has been writing about our set of new product offerings, has been supporting us on that front. So Anuj, welcome on board. Last but not the least, I'd like to invite my dear friend Aditya Chopra, who's been a part of the exchange some time back, but now has been working with the exchange
and he's an entrepreneur, he's a mentor for I think thousands of set of participants, and he'll be our connect with the audience today, who will be ensuring that whatever gets communicated is less complicated for most of the set of participants, and also is well understood by the participants. I would not like to forget one more panelist who's been a part of the exchange again, but has now constantly working with the physical market. Jagdeep, didn't see you earlier on the screen, so I wasn't sure. So I'd like to welcome Mr. Jagdeep Grewal. Mr. Jagdeep has been is strongly connected with the physical markets, and he will be our connect, which will clearly establish a link between how the physical markets or the value chain participants can utilize options to their benefits. So over to you with this, Ajay. I hand over the baton to you, and wishing you all the very best in this entire interaction with our set of panelists. All the best, panelists. I hope we are able to deliver to the audience what we've promised to them. Thank you. Thank you so much, Kavita ji. Definitely मेरे लिए काफ़ी important day है, because अब तक मैं पैनल के दूसरी ओर बैठता था, बट आज मुझे एज ए मॉडरेटर बताया गया है, एंड पहला दिन है अगस्त का, एंड अगस्त में हम जानते हैं इंडिपेंडेंट डे और अमृत महोत्सव हम बना रहे हैं. 75 years वी आर सेलिब्रेटिंग फॉर इंडिपेंडेंट, एंड डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि जो ये पैनल है मोर देन 75 years का एक कंसोलिडेटेड एक्सपीरियंस है. खास करके अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें, जहाँ पे वाधवा जी है, नितिन जी है, मेरे कलीग अनुज है, आदित्य से भी मैंने ऑप्शन के लिए काफ़ी बार इंटरेक्ट किया है. काफ़ी रियली अच्छे ऑप्शन के बारे में जानते हैं. और डेफिनेटली फिजिकल मार्केट की अगर जानकारी हम जगदीप से बात करें तो डेफिनेटली हमें काफ़ी, तो मोर देन 75 years हम बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस आज इस पैनल पे रहेगा. जैसे कि हम जानते हैं कि एग्री कमोडिटी में नो डाउट वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 18 years, बट देन आल्सो अगर हम देखते हैं तो अभी भी कुछ अनसर्टेनिटी बनी रहती है माइंड में ट्रेडर्स के या पार्टिसिपेट के हाउ टू ट्रेड इन फ्यूचर्स, हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस. बट बिलीव मी, जो एक वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है और प्रोडक्ट वाइज अगर हम बात करें तो काफी एक 360 डिग्री प्रोडक्ट हमें मिल चुका है विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर, एसोसिएशन एंड एक्सचेंज, जिन्होंने एक कांस्टेंट एफर्ट्स लगाया है. और आज हमारे पास ऑप्शन है, कैश मार्केट भी काफी अच्छा डेवलप हो रहा है. साथ में हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स में भी काफी अच्छे पार्टिसिपेशन हमने पास्ट में देखे हैं. और जिस ढंग से हम इक्विटी मार्केट को देखते हैं, सेम आज कमोडिटी मार्केट में खास करके एग्री मार्केट की बात करें, बिकॉज 2021 और 2022 की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट पैंडेमिक एग्री कमोडिटी हमेशा लाइमलाइट में रहा है. और आज भी हम जानते हैं कि काफी देशों में 40 years के जो इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं 40 years के हाई पे, इन्फ्लेशन इज एज गुड एज कमोडिटी प्राइजेस आर राइजिंग. तो हमें ध्यान रखना है कि कमोडिटी प्राइजेस पे अभी आगे क्या रहेगा. इसके लिए आज इस पैनल पे हम लोग मेक श्योर करेंगे कि जो नए टूल्स हैं, हाउ वी कैन टेक हेल्प ऑफ दिस न्यू टूल्स, जो हमारे ट्रेडिंग पैटर्न्स को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकता है और अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं. तो इसी लाइन में सबसे पहले वाधवा जी हमारे साथ है, जो सीपीआई के प्रेसिडेंट है और इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा हम बोल सकते हैं वास्ट एक्सपीरियंस है. ओवरऑल इंडस्ट्री के सारे इनिशिएटिव इनके तौर पे लिए गए हैं. पिछले टेन्योर में हमने देखा, पिछले कुछ सालों के अंदर हमने इंडेक्स का लॉन्च होते हुए देखा, ऑप्शंस में देखा. तो वाधवा जी, सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा आप ही से, क्योंकि इंडस्ट्री में जिस ढंग से आपके टेन्योर में हमने देखा है कि काफी रैपिडली कमोडिटी मार्केट में चेंजेस आता हुआ दिखाई दिया है. हमने देखे नए टूल्स कमोडिटी मार्केट में बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें इंडेक्स का लॉन्च हो चुका, इंडेक्स का लॉन्चिंग, देन ऑप्शन, तो ये सभी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं. तो आगे जाकर हम इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, और खास करके ऑप्शंस कैसे एक गेम चेंजर का रूप ले सकता है एग्री कमोडिटी के लिए. प्लीज गाइस. अजय जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन. कविता जी, at the outset, compliment NCDX and congratulate NCDX team for organizing this skill development program and awareness program for the members. Today's webinar is on options.
जैसा अजय जी ने कहा कि पिछले 4-5 साल में हमने नए प्रोडक्ट्स देखे हैं और ऑप्शंस भी उसका आज का हमारा टॉपिक है। तो जैसे ही हम इंटरेक्ट करते हैं रेगुलेटर्स से, गवर्नमेंट से, तो वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टिसिपेंट्स आएँ इस मार्केट में, क्योंकि वेरी पर्पस ऑफ दिस मार्केट इज efficient price discovery and price hedging। तो प्राइस हेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके लिए ये कमोडिटीज मार्केट 2003-4 में बनाए गए थे। और मेरे को खुशी है दैट वी आर डूइंग जॉइंटली प्रोग्राम विद एनसीडीएक्स, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी हैविंग मोर फिजिकल प्रोग्राम्स आल्सो with NCDX. I can see there are eminent panelists today with us. Ajay ji, Anuj ji, they are popular personalities on TV. They'll be giving you this value option day. अजय जी, आप कह रहे हैं कि वैल्यू जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस मार्केट के, जैसे कि प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, फूड वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको बहुत ज़रूरत है इन टूल्स को यूज़ करने की, फ्यूचर्स या ऑप्शंस को, स्पेशली जब पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे हमने देखा 2 साल में, इतना ग्लोबल वार्मिंग है, इतनी अनसर्टेनिटी है, यूक्रेन वॉर और क्या 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 नहीं हो रहा है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो यही एग्जैक्ट टाइम है जिसके लिए ये मार्केट्स बनाए गए थे कि कैसे हम इसको अपना जो इनपुट है या जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उसको कैसे यूज करें इस कमोडिटीज मार्केट को। तो ऑप्शन एक बहुत अच्छा टूल है, जैसे आज का हमारा टॉपिक भी है, इज द सेफेस्ट टूल फॉर हेजिंग एंड एम्प्लीफाइंग प्रॉफिट्स इफ यूज्ड इन ए प्रॉपर मैनर। एंड I think there is enough material on the website, and we have eminent panelists today also who are going to teach you how to use options in trading as well as hedging strategies. मैं एक चीज कहना चाहूंगा अजय जी यहाँ पर कि कमोडिटी मार्केट में जो नया इन्वेस्टर आता है, पार्टिसिपेंट आता है, उसको लगता है अकाउंट खोलो और स्टार्ट ट्रेडिंग and it is investment. It is not investment, it is speculation basically. So we have to differentiate between speculation and investment. Option definitely, जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई चेन टोटल डिस्टरप्ट हुआ है, चाइना प्लस की पॉलिसी चल रही है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन रहेगा सोर्सिंग के लिए, चाहे वो एग्री के भी प्रोडक्ट हों या जो भी प्रोसेसिंग होगी। तो अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कमोडिटी मार्केट में, और तो वेरियस टूल्स हैं, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, और ईटीएफ्स आ रहे हैं, इंडाइसिस काफ़ी इंट्रोड्यूस हुए हैं पिछले कई सालों में। तो अगर इसको ठीक तरीके से विद द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स अगर उसमें पार्टिसिपेट किया जाए तो कमोडिटी मार्केट से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है, बार बार मैं कहता हूँ, वो मैकेंजी की स्टडी कहती है 40% जो है इट विल कम फ्रॉम द कमोडिटीज मार्केट। सो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द country which is going to happen, and country which is going to have 9 to 10% of GDP growth. So if you participate in the growth of the country and participate in the commodity market, I think nothing better than advice from consultant or advisors like we have today. So as a industry body हम continuously touch में हैं रेगुलेटर से और गवर्नमेंट से कि नए नए प्रोडक्ट्स दिए जाएं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएं। मेरे को खुशी है बीइंग ए पार्ट ऑफ सीडेक कमेटी, कई नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं एग्री रिलेटेड भी, वो भी आने वाले हैं, गवर्नमेंट की परमिशन वो जल्दी आएगी, तो विल हैव न्यू प्रोडक्ट्स आल्सो in the agri commodity. So people can benefit, members can benefit from it. One more thing before I conclude, that we are going to have more programs on different products of the market, in the market. So I'll suggest and request my member friends हमारे को suggest कर रहे हैं कि what all topics they want us to have programs on.
Thank you very much NCDX once again for associating with the CPI. Thank you Ajay ji. थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। डेफिनेटली कभी भी जब आपसे बात करते तो एक एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, और जो वास्ट नॉलेज है आपका उसको डेफिनेटली हम यूज करने की पूरी पूरी कोशिश करती है। सर मैं एक सवाल और है कि अगर हम ऑप्शन का कंपेयर करते हैं ग्लोबल मार्केट से, जैसे कि हम देखते हैं कि इक्विटी के अंदर ऑप्शन जिस ढंग से हम बोल सकते हैं कि रग रग में बस चुका है, कोई भी आदमी ट्रेड करना चाहता है तो इक्विटी ऑप्शन से ही स्टार्ट करता है एक्चुअल में, अभी ऐसा सिनेरियो बन गया है। तो व्हाट आपको क्या लगता है कि जैसे रिसेंट में हमने जो एग्री ऑप्शंस अभी लॉन्च हुए हैं, तो जो मार्केट शेयर एग्री का इंडिया में है उतना ही जो पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं काफी स्लो एंड स्टडी रहा है। तो क्या चीज और हम एक एजुकेशन तो डेफिनेटली सीपीआई भी कर रही है, एक्सचेंज भी कर रही है, और क्या एफर्ट्स हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा अगर हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली एक सबके लिए इजी टास्क रहेगा। नरेंद्र जी। जी देखिए मार्केट जो नया पार्टिसिपेंट आया है सबको ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना आ गया है। in courtesy people like you are educating, you know, the bit of investors use option in various scenario in for hedging tool. Word में market share multiple टाइम, और मेरे को लगता है राइट टाइम और तो यहाँ पर भी इतना बहुत बड़ा फ्यूचर है। अगेन मैं कह रहा हूँ नए कॉन्ट्रैक्ट है, एग्री के बहुत सारे फ्यूचर्स आ रहे हैं, ऑप्शंस भी आएंगे, ऑप्शंस ऑन इंडेक्सेस आएंगे इसके अंदर। तो ह्यूज फ्यूचर एंड एक्साइटिंग टाइम फॉर मार्केट आल्सो एंड द थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए, नितिन जी है हमारे साथ फिनडॉक से, और लिटरली लास्ट हम रिसेंटली हम एक सीपीआई के मीट में दिल्ली में मिले थे। इनका ऑलमोस्ट मोर देन 20 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, और मेरे अगर मोबाइल में आप इनका नाम देखेंगे तो एल्गो मैन के नाम से मैंने इनका नाम फीड कर रखा है, बिकॉज जिस ढंग से मार्केट में स्ट्रेटजी और ट्रेंड चेंज होते हैं, और एल्गो पे जिस ढंग से हम वर्कआउट करते हैं, 2-3 बार मैंने कनेक्ट भी किया है सर के साथ, तो डेफिनेटली एक क्वांट ट्रेडिंग जिस ढंग से एक नया आयाम रख रही है कैपिटल मार्केट के अंदर, तो एग्री मार्केट के अंदर भी स्लोली एंड स्टेडीली, हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो वहां पे हम देख रहे हैं कि इसका और नितिन जी के जो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली इसमें एक सपोर्ट का काम करेगी। तो नितिन जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कि कोई मार्केट छूटा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम दिल्ली में जब मिले थे तो हम बॉन्ड मार्केट के ऊपर बात कर रहे थे। तो आई थिंक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड सभी का आपको अच्छा नॉलेज है। तो कैन यू हेल्प अस टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन स्ट्रेटजी जो डेरिवेटिव्स में इस वक्त चल रहा है, और एग्री कमोडिटी अगर हम बात करें तो एक तरह से कमोडिटी डाइवर्सिफिकेशन का काम करती है, सभी जानते हैं, बट ऐसे क्या टूल्स हो सकते हैं ऑप्शन में जो कमोडिटी डेरिवेटिव, स्पेशली कमोडिटी डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हम देख पाएंगे। नितिन। थैंक यू अजय जी। और मैंने आपका एग्री गुरु लिखा हुआ है नाम। सो थैंक्स फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ना जो मैं जितना मैं स्टडी कर पाया हूँ, और जैसे मैंने डिफरेंट मार्केट्स को इवॉल्व होते हुए देखा है, तो मैं ये समझता हूँ, जानता हूँ कि जो फिजिकल पार्टिसिपेंट्स होते हैं कमोडिटी मार्केट्स के, या किसी भी मार्केट के, जहाँ पे आज 2002 में जब स्टॉक्स की ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुई थी, तो हम अपने डीपी को खंगालते थे और देखते थे किसके पास रिलायंस पड़ी है, किसके पास स्टरलाइट पड़ी है। उसको जा करके समझाते थे कि भैया तेरा ये दुकान मकान पड़ा है, इसको किराए पे चढ़ा दे, कोई ऑप्शन बेच दे। और डिफरेंट टाइम्स में कभी हमें दिखता था कि अगर मार्केट कुछ नेगेटिवली बाइस्ड है तो उसको समझाते थे भैया या तो शेयर बेचना तो एक ऑप्शन नहीं है,
क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म या टोटली इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, उनको समझाया जाता था कि इसकी पुट खरीद ले। तो सेम एक अपॉर्चुनिटी है, हम जो कमोडिटी मार्केट्स को ऐसे ही इवॉल्व कर सकते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। उसके लिए हम सबको डेरिवेटिव मार्केट्स एक पहचान बन चुकी है कमोडिटीज में भी, ऐसा नहीं है कि नई पहचान है। मैं बीकानेर जाता हूँ, जोधपुर जाता हूँ, कोटा जाता हूँ, एमपी एरियाज में कहीं जाता हूँ, गुजरात जाता हूँ, तो कितने ही ऐसे ट्रेडिंग वर्क स्टेशन हैं जहाँ पे सिर्फ एग्री कमोडिटीज ही चल रही होती हैं। मेरे को उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मेरे को ये बता दो कि इस वक्त इंडेक्स क्या है, ऊपर है, नीचे है। तो वो या फिर को अपनी ऐप खोलनी पड़ती है कि मैं देखूं बाजार ऊपर है, नीचे है। सो इतनी बड़ी मार्केट है, और मैं ये देख पाता हूँ कि जब हम कोट देखते हैं, मान लो मैंने गुआर खरीदनी है, कैस्टर लेनी है, फिजिकल पार्टिसिपेंट की तरह मैं डील भी करता हूँ। तो जब मैं ट्रेड लेता हूँ, बात करता हूँ किसी भी ट्रेडर से, तो मैं आमतौर पर एक जवाब देता है कि डब्बे से इतना ऊपर या इतना नीचे। आज की डेट में शायद गुआर फिजिकल मार्केट से थोड़ा सा बैकवर्डेशन में चल रहा है। तो कल परसों ही मैंने कोई ट्रेड लिया, 50 रुपए नीचे था, तो उसने मेरे को कोट यही दिया, डब्बे से 50 रुपए नीचे, 60 रुपए नीचे, ऐसा कुछ भाव था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट्स ऐसा नहीं है कि मैच्योर्ड नहीं है। किसी ज्वेलर के पास चले जाओ, मेरी शक्ल देख करके तो वो वैसे भी, मतलब वो पहले देखता है, गोल्ड में पूछता हूँ क्या भाव है, तो पहले वो सीएनबीसी देखता है या टीवी देखता है, क्योंकि उसको पता है मेरे को गोल्ड का रेडी रेट पता है। सो हम जिस कमोडिटी प्रधान देश में हैं, एग्री कमोडिटी प्रधान देश में हैं, वहां पर इतनी पॉसिबिलिटीज अभी अवेलेबल है कि मैं आपको बता नहीं सकता एग्री कमोडिटी स्पेसिफिकली। और अदरवाइज ऑल्सो अगर मेटल्स की बात करते हैं, तो वी आर लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन वर्ल्ड। ऐसे ही हम कितनी, बिकॉज आज की डेट में बेस मेटल्स में भी ऐसे ही चल रहा है। सो सेइंग दैट हम व्हेन वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्रेन्स इन इंडिया, वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यूजर, कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन इंडिया। तो हमारे पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इस बाजार को, डेरिवेटिव मार्केट्स और ऑप्शंस को यूज करने का, कि मैं बता नहीं सकता। छोटी छोटी चीजें, कई बारी किसी किसान से मिलते हैं, कोई बाय चांस मिल जाए, तो उसको आज पुट ऑप्शन का, अभी आपने कहा कि एजुकेशन के अलावा क्या हो सकता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो देखो एजुकेशन ही है, और वो ग्रास रूट लेवल पे है। मैं, आप, इस पैनल में बैठे हुए मोस्ट ऑफ द पीपल, हम सबको ऑप्शंस पता है, हम अभी यूज नहीं कर रहे, हम शायद वेट कर रहे हैं कि कब लिक्विडिटी आएगी। तो लिक्विडिटी लेके आने वाले हम ही लोग हैं, हम ही पार्टिसिपेट करेंगे। जो तरीका मैंने आपको बताया कि पहले रिलायंस ढूंढनी पड़ती थी किसके डीमैट अकाउंट में है, वैसे आज ये ढूंढना पड़ेगा कि हु इज एक्चुअल कंज्यूमर, हु इज एक्चुअल प्रोड्यूसर, हु इज एक्चुअल होल्डर ऑफ कमोडिटी। उसको बताना पड़ेगा कि ग्वार की पुट बेच करके भी तू खरीद सकता है। उसे बताना पड़ेगा कि ये तेरे डिजायर्ड भाव की कॉल बेच करके भी तू अपनी पोजीशन को सेट ऑफ कर सकता है, या और उसके ऊपर कोई ना कोई रिटर्न कमा सकता है। तो इस तरह के जो यूजेजेस हैं, इसे हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा जो रिस्की ट्रेड्स हैं, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, जो रिस्क लेते हैं, उनको इस मार्केट में लेकर आना और उनको ट्रेड करना, मेरे ख्याल से इक्विटी मार्केट से आसान है। कारण ये है, हम कहते हैं इक्विटी सिक्लिकल इन नेचर, मेरे ख्याल से कमोडिटी से ज्यादा कोई सिक्लिकल है ही नहीं। ज्वार ने जिस मौसम में आना है उसी मौसम में आना है, कॉटन ने जिस मौसम में आना है उसी मौसम में आना है, व्हीट ने जिस मौसम में आना है उसी मौसम में आना है। अब रिस्की ट्रेडर को वहां पे कॉल बेचनी है, पुट बेचनी है, बताने की जरूरत ही नहीं है। उसको सिर्फ चार्ट समझाना है कि इस मौसम में ग्वार आती है और इस मौसम में भैया व्हीट आती है, और उसको समझ आ जाएगा ट्रेड कैसे लेना है। तो ये थोड़े एफर्ट्स शायद हमें, हम तो कर रहे हैं ऑनेस्टली, एज मेंबर ब्रोकर हम तो ये कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं, आपने मेरा नाम एल्गो मैन रखा हुआ है, तो जैसे अभी ऑफ लेट इंडाइसेस आए, तो उसके ऊपर एक एल्गो बन गया कि भैया गुआर एक्स का ऐसे ट्रेड होगा, एंड
उसने हमें बहुत सपोर्ट किया, मेरे टॉप लाइन को भी और बॉटम लाइन को भी। ऑब्वियसली जितना वहां पे वॉल्यूम मिलेगा उसी हिसाब से मैं ट्रेड कर पाऊंगा, बट जब मैं वहां जाकर के बिडिंग करूंगा तो एक वॉल्यूम अपने आप क्रिएट भी होगा। सेम इज केस विद कमोडिटीज ऑप्शंस एज वेल, कि वहां जाकर के हम ट्रेड कर रहे हैं। एक आध मैंने सलाह में प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी में हूं, तो लास्ट टाइम मैंने एक सलाह भी दी है कि आज ऑप्शंस के अंदर जब मैं एल्गो ट्रेड मारने जाता हूं तो वहां पे कई बार मेरे को ओटीआर की दिक्कत आती है। सो आई हैव पोस्टेड इन द एडवाइजरी कमेटी एज वेल, बट ऑनेस्टली धीरे धीरे ये ओटीआर की प्रॉब्लम्स घट जाएंगी, क्योंकि टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमने हमें इट इज अ बेबी टू अस, एवरीबॉडी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब के लिए बच्चा है, इसे हमें ही पालना है, पड़ोसना है, बड़ा करना है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको भी अपने को हैंडल करना पड़ेगा। एंड आई एम डिलाइटेड एंड वेरी हैप्पी टू नो कि लोग, कई पार्टिसिपेंट्स, अभी मैं फ्राइडे को जब गया हुआ था अपना अहमदाबाद में, ये गांधीनगर गिफ्ट सिटी में, तो वहां पे कुछ पार्टिसिपेंट्स फिर मुलाकात हुई, वधवा साहब से वही मुलाकात वापस हुई। तो जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर थिंकिंग ऑन कि भैया इसके ऊपर क्या क्या स्ट्रेटेजीज लगाई जा सकती हैं ऑप्शंस के ऊपर। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो रिस्की ट्रेडर्स बाजार में आने को तैयार हैं। एक एक्चुअल ट्रेडर को इसमें लेकर के आना इतना मुश्किल नहीं है, हालांकि उसको समझाना जरूरी है। हेजर्स हैं, जो मिलर्स अपने पास माल रख के बैठे हैं, वो सिर्फ फ्यूचर बेचना जानते हैं, पुट ऑप्शन खरीदना नहीं जानते या कॉल ऑप्शन को बेचना नहीं जानते। उन्हें थोड़ा थोड़ा ये समझाना पड़ेगा। तो हम ये छोटे छोटे एफर्ट्स करें तो अपने आप, अब मैं अपन एक तरह का पेयर ट्रेड बना लेते हैं, ग्वारेक्स लेकर के ग्वार गम ग्वार सीड बेचना। अगर ग्वारेक्स की भी ऑप्शंस आ जाएं तो ऑप्शंस के अंदर ही पेयर ट्रेड बन जाएगा। तो इस तरह के हम छोटे छोटे एफर्ट्स करके मेरे को लगता है कि हम मार्केट में एक तो लिक्विडिटी ला सकते हैं, दूसरा इसको, इस प्रोडक्ट का पूरा पूरा फायदा उठाया जा सकता है। मुझे उसके बाद नॉर्मली हम फॉलो करते हैं कि बाजार में इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है। तो अगर आप कॉटन जैसे कमोडिटी की बात करते हो तो महीने के 2 से 3 लाख ऑप्शंस आइस में ट्रेड होते हैं, सॉरी वीकली ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, 2 से 3 लाख ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। शुगर के 5 लाख ऑप्शंस मंथली ट्रेड होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जब हम आइस या बाहर जाकर के इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में ऑप्शंस को स्टडी करते हैं तो देयर इज plethora ऑफ अपॉर्चुनिटी। धीरे धीरे दैट हैज टू कम इन इंडिया एज वेल, एंड वी बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स, हमारे लिए तो इट इज मोर इफेक्टिव कि हमें उसको यूज करना चाहिए, अपने यूजर्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को इसके बारे में समझाना चाहिए। मोर ओवर हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियोज को। और आज मैं किसी एक वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट की तरह, मैं मान लो ग्वार का काम कर रहा हूं तो ग्वार गम की मैं कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूं या पुट ऑप्शन खरीद सकता हूं, क्योंकि ग्वार है मेरे पास, उसका मैंने बाई प्रोडक्ट को हेज करना है। तो व्हाई टू सेल ग्वार ओनली, व्हाई टू सेल ग्वार गम फ्यूचर्स ओनली। हम पुट ऑप्शन से उसको हेज कर सकते हैं ताकि मेरा प्रोड्यूस का भाव फिक्स हो जाए। ग्वार को ग्वार की तरह यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे कमोडिटीज में जैसे जैसे ऑप्शन में लिक्विडिटी आएगी, इतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं। मेरे को लगता है कि एक समुंदर है जो अपॉर्चुनिटीज का अवेलेबल है। और मेरे को कोई भी 1% डाउट नहीं है कि आने वाले टाइम में, आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, इसी वेबिनार को अपन याद कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाँ यार उस वक्त कुछ बात हुई थी। सो विद दिस आई थिंक बात तो जितनी मर्जी की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने लिटरली जो एग्जांपल दिया है कि प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी है उसको भाड़े पे लगाओ, तो वही एक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि एक एक वैल्यू चेन पार्टी, चाहे फार्मर है, चाहे हमारे एक्सपोर्टर है, चाहे स्टॉकिस्ट है, इनको जाकर एग्जांपल के तौर पे, मेरा एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगा कि जो एजुकेशन एक अपनी जगह पे बिल्कुल सबसे मस्ट है, जैसे वाधवा जी ने भी कहा, आपने भी कहा। इसमें एक मैंने नोट किया था, पहले जब मैंने वेबिनार सब स्टार्ट किए थे तो मैं इंग्लिश में लेता था,
तो जो व्यापारी वर्ग है या फार्मर है, बोले सर आप बोलते बहुत अच्छा हो लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ती। बोले क्यों? बोले सर हम लोग ना ग्राउंड वाले आदमी हैं, हमें हिंदी में बताओ। और लिटरली मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ, हमारे यहाँ पे वेलनेस एक मार्केटिंग चैन है, तो वहां पे मैं गया, एक बंदा आकर पूछा एलम है क्या? और वो दुकानदार एलम मतलब समझ में नहीं आया, फिर उसको बताया फिटकरी बोल रहा है। तो ये चीज समझ में आई कि अगर हमें ट्रेडर के पास, फार्मर के पास रूट तक जुड़ना है तो हमें हिंदी के साथ जाना है। तो मैंने काफी वेबिनार्स मेरे हिंदी में कन्वर्ट किए, और लिटरली जो एजुकेशन लेवल, जैसे भी आप बता रहे कि आपके पास स्टॉक में माल पड़ा है तो आप उसको ऊपर में बेचने के लिए ऊपर के कॉल राइट कर दीजिए, अगर आपको सस्ते में लेना है तो नीचे के पुट राइट करके चलिए। तो जुड़े हुए वर्ड्स अगर हम साथ में लेते हैं तो उन्हें क्लिक और एक लिंक दोनों मिलती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, जो आपने 3-4 चीजें बताई है, डेफिनेटली हम उस चीज को आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमारे साथ है अगले मेरे मित्र अनुज। अनुज को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जैसे ही हम वाधवा जी से पूछा था कि फेस ऑफ कमोडिटी हम बोल सकते हैं। कोई भी चैनल, इनफैक्ट थोड़ी देर में दूसरे चैनल में भी अभी हम देख पाएंगे अनुज को, तो कोई भी चैनल में आप ऑन कीजिए, कमोडिटी का कोई भी प्रोग्राम हो तो अनुज का पहले नाम आता है। तो अनुज, मेरा सवाल आपसे ये है कि एग्री कमोडिटी में ज्यादा करके हमने देखा कि लोगों को डर लगता है, और जैसे एक डायलॉग भी है कि डर के आगे जीत है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन, जैसे हमने बोला, नॉलेज, नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्री में फैक्टर्स काफी हो जाते हैं। क्योंकि इक्विटी के अंदर हम देखते हैं कि सुबह जी बिजनेस, ईटी नाउ, सीएनबीसी कोई भी चैनल खोलते हैं तो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसको देखकर हम ट्रेड कर पाते हैं। तो एग्रीकल्चर में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो हमें ग्लोबली और डोमेस्टिकली ध्यान देने चाहिए, और साथ में उन फैक्टर्स को देखते हुए क्या अपॉर्चुनिटी हम एग्री में देख सकते हैं? अनुज। थैंक यू अजय जी। सबसे पहले तो थैंक्स अजय जी, आपका थैंक्स सीपीआई एनसीडीएक्स और सभी डिग्निटरीज का मुझे यहाँ इस वेबिनार में इनवाइट करने के लिए, क्योंकि ये वेबिनार एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जनरली एक ऐसी कमोडिटी जो कि आदमी के डेली रूटीन से जुड़ी हुई होती हैं। और अजय जी, जैसा कि आपने कहा कि लोग सोचते हैं कि कमोडिटी सबसे डिफिकल्ट है समझना, तो मैं कहूँ सबसे इजी समझना एग्रीकल्चर कमोडिटीज है। क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटी जो है हम उसको डेली बेसिस पर ट्रैक करते हैं और डेली बेसिस पर हम इसको इवेल्युएट भी करते हैं, क्योंकि इसका सीजन सबको पता होता है कि कौन सी कमोडिटी किस सीजन में आनी है, क्या डिमांड सप्लाई है। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो सबको पता था कि गेहूं पर इशू आ सकता है, सूरजमुखी के तेल पर इशू आ सकता है। तो एवरीबॉडी नोज कि अगर कोई भी ग्लोबल इवेंट होता है तो किस कमोडिटी पे इंपैक्ट हो सकता है। इंडोनेशिया ने एडिबल ऑयल बैन किया तो सबको पता लगा कि पाम का प्राइस बढ़ गया। वहीं अगर हम देखें तो भारत ने जैसे ही वीट का एक्सपोर्ट रोका तो वीट के प्राइस बढ़ गए, उसके बाद वीट के प्राइस नीचे आ गए। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कमोडिटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू ट्रेड है। अभी हमने देखा था, जहाँ तक अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो अभी हमने पिछले 2 सालों में पेंडेमिक के टाइम पर देखा कि करीबन जो डीमैट अकाउंट की संख्या थी वो 4 करोड़ से बढ़कर करीबन ऑलमोस्ट 10 करोड़ हो गई। और ऐसे के अंदर अगर आप बाकी जो अकाउंट ओपन हुए उनमें अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम ट्रेड करने वाले जो लोग थे वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक्टिव लोग थे। उनका डिलीवरी वॉल्यूम काफी कम था, बट उनकी जो ऑप्शंस था, ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम जो था वो चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी में हो, वो वहां पर बढ़ता हुआ था। तो ऑप्शन प्रोडक्ट एज ए अब एक पुराना प्रोडक्ट नहीं है, ये एक नया प्रोडक्ट नहीं है, सबको पता है कि ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन ये है कि आदमी जो इन्वेस्टर है उसको हमें ये बताना है कि आपके लिए जो आप फैक्टर इक्विटी मार्केट के लिए देखते हैं वही आपको कमोडिटी मार्केट के लिए देखने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम इक्विटी ऑप्शंस की बात करें तो वहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो ऑप्शन के अंदर देखने को मिलते हैं। और ऑप्शन जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबसे सेफर और सबसे इजीएस्ट है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर हमें ये पता लग जाता है कि हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है। अगर हम कोई कॉल या पुट को परचेज कर रहे हैं तो जो हम प्रीमियम पे करते हैं वो एक पता लगता है कि आपने जितना प्रीमियम पे किया वो आपका मैक्सिमम लॉस है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हमें ये पता है कि हमारा लॉस कितना है वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट होता है, क्योंकि वहां पर जो ट्रेड करने की और जो प्रॉफिट कमाने की जो परसेंटेज है वो वहां पर बढ़ जाती है। तो ऑप्शन एज एन अ प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेफर है, जस्ट लाइक इंश्योरेंस। अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं उसका प्रीमियम पे करते हैं तो वैसे ही हम अपने ट्रेड का इंश्योरेंस भी यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम ग्वारेक्स, ग्वारसीड, ग्वारगम के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, अब तो हम देखें स्पाइसेस के अंदर भी ऑप्शंस चालू हो गए हैं। तो ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जो कि मोर लिक्विड देन इक्विटी। अगर हम इक्विटी स्टॉक्स की बात करें तो इक्विटी स्टॉक से भी ज्यादा लिक्विड ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर हम इजीली ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं।
जैसे हम इक्विटी में चेक करते हैं, कुछ टर्म्स हैं, वही हम टर्म्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट की या वॉल्यूम्स की, या फिर अगर हम पीई रेशो की बात करें, पुट कॉल रेशो की, तो ये टर्म्स ऐसी हैं जो कि सभी ट्रेडर जानते हैं जो इक्विटी में यूज करते हैं। तो यही ट्रेड जो टर्म्स हैं, यही आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटी के ऑप्शंस में यूज होती हैं, क्योंकि ऑप्शन चाहे आप इक्विटी में करें, चाहे आप किसी और कमोडिटी में करें, चाहे आप एग्रीकल्चर कमोडिटी में करें, तो सभी के लिए सेम है। तो यहाँ पर एग्री में करने का लॉजिक ये है क्योंकि एग्री एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम भली भांति जानते हैं। हमें पता है कि ग्वार की क्रॉप कब आनी है, ग्वार किस किस चीज में यूज होता है, क्रूड से प्राइस इफेक्ट होते हैं या नहीं होते, साथ में अगर इंटरनेशनली कुछ भी इशू आएगा तो इजी ट्रैक करना है। अगर हम बात करें स्पाइसेस की, तो एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर जनरली सभी जानते हैं कि अगर क्रॉप खराब होगी तो आपका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइदर कि हम उसको फ्यूचर में ट्रेड करें, एक ऑप्शन अवेलेबल है जहां पर हम इजीली ऑप्शंस को एक्सचेंज के थ्रू, एनसीडीएक्स के थ्रू हम उसको ट्रेड डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म्स कंडीशंस हैं, अगर हम टर्म्स की बात करें, तो जैसा कि पहली कंडीशन है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट एक ऐसी टर्म्स है जो कि हम इक्विटी में भी ट्रैक करते हैं। जनरली ओपन इंटरेस्ट, अगर आप पिछले एक महीने की ट्रेड को देखेंगे, क्योंकि जो हमने अभी रैली देखी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हमने रोल प्ले किया है वो आपकी कॉल पुट, ऑप्शन पुट के अंदर हमने देखा ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़े हैं। तो जब अगर आप पिछले एक महीने के डेटा और पिछले महीने के डेटा को देखेंगे, तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट के अंदर जैसे जैसे पोजीशंस बढ़ी हैं, वैसे ही आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी चढ़नी स्टार्ट हुई है। तो ये लाइव एग्जांपल है कि अगर आप ओपन इंटरेस्ट को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। तो एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर भी, क्योंकि ग्वारेक्स सबसे ज्यादा लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप ग्वारेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ग्वारेक्स की अगर आप ऑप्शंस के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पर हमको उसकी जो ओपन इंटरेस्ट है, अगर हम उसको ट्रैक करेंगे तो हमको बहुत अच्छे इंडिकेशन मिलेंगे। जैसे कि अभी हम देखें तो ग्वार के भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं, तो अगर आप वहां पर पुट ऑप्शंस को देखेंगे तो वहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडर है वो शॉर्ट साइड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुट में अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इट मीन्स कि जो ट्रेडर का मेंटेलिटी है वो सेलिंग साइड में है, और हमने कंटिन्यूसली भाव नीचे आते हुए देखे हैं। वहीं अगर हम इसको कंपेयर करें वॉल्यूम से, क्योंकि प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, ये तीनों एक ऐसी तीकड़ी है जो कि मार्केट की ट्रेंड को आपका 80% तक कवर कर देती है। तो अगर हम इसको कंपैरिजन में डालें तो आप देखेंगे कि अगर प्राइस बढ़ रहा है और आपका अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इट मींस कि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो हम इस वे में मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं, जो कि हमने अभी लेटेस्टली लाइव निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा है। तो एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और एग्रीकल्चर कमोडिटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि किसी शेयर को अगर हमें ट्रैक करना है, या अगर हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी को ट्रैक करना है, तो हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा कंपनी के मैनेजमेंट को, कंपनी के डिटेल्स को। बट अगर हमें एग्रीकल्चर को समझना है तो सिर्फ हमें ये देखना है कि क्रॉप कब आ रही है, जो कि सबको पता होता है। फेस्टिवल सीजन की डिमांड क्या है वो सबको पता होती है। मैरी सीजन की डिमांड वो सबको पता है, जैसे फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है तो हम देखेंगे कि सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मॉनसून सबसे बड़ा इवेंट है एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए, क्योंकि मॉनसून के साथ साथ हम देखेंगे पूरे साल भर की जो ट्रेंड होता है वो इस मॉनसून पे डिसाइड हो जाता है। तो ये मॉनसून इतना अच्छा मॉनसून जा रहा है कि हम आगे वाले समय में एक काफी अच्छा मोमेंटम हम एग्रीकल्चर कमोडिटी में आते हुए देखेंगे, चाहे वो स्पाइसेस हो, क्योंकि इस मॉनसून का की वजह से हम स्पाइसेस के अंदर अच्छी सोइंग एक्टिविटी होते हुए देखेंगे, ग्वार के अंदर हम अच्छी सोइंग एक्टिविटी देख रहे हैं। तो इस एक्टिविटी को हमको ऑप्शंस के ट्रेड में डालना है। हमने पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ एक दो सालों में हमने देखा था काफी एफपीओस का इंटरेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी में ऑप्शंस में बढ़ा था। उन्होंने ऑप्शंस के थ्रू डिलीवरियां भी ली थी और डिलीवरियां दी भी थी। तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस का जो इंटरेस्ट है वो लोगों में यहाँ पर आना स्टार्ट हुआ है। जहां तक जो टर्म्स की हम बात कर रहे थे, प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, तो ये जो तीन चीजें हैं ये एग्रीकल्चर में भी काम करती हैं। अगर प्राइस नीचे आ रहा है और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है या ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इट मींस पीपल आर ऑन सेलिंग साइड, पीपल आर थिंकिंग दैट मार्केट विल गो डाउन। तो ये एक ट्रेंड डिसाइड करता है कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है और आपका वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इट मींस कि पीपल जो है वो एक नेगेटिव साइड में सोच रहे हैं और वहां पर आपकी बेयरिश पोजीशन वहां पे खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। तो सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक बड़ी चीज है पुट कॉल रेशो, जो कि इंडिकेट ये करती है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पुट और कॉल रेशो एक से ज्यादा होंगी तो ये पता लगेगा कि मार्केट में जो ट्रेडर हैं वो या तो हेज कर रहे हैं पोजीशन को, जो प्रोड्यूसर हैं, या फिर ये इंडिकेट आता है कि मार्केट एक सेलिंग साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पुट कॉल रेशो, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और प्राइस, इनको ही हमको ट्रैक करना है, जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए बहुत ईजी। अदरवाइज जो हमारे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के लिए वही हमको ध्यान में रखने, अदरवाइज उसके अलावा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटी
एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम 95% भारत की जीडीपी कवर होती है और एवरीबडी नोज अबाउट द एग्रीकल्चर कमोडिटी। और सबसे बड़ी बात, जो भारत का शेयर बाजार है वो ऑलमोस्ट 95% बैक्ड बाय द एग्रीकल्चर कमोडिटी। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो एग्रीकल्चर कमोडिटी से बैक्ड नहीं है, चाहे वो मेटल कंपनी हो उसको भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए होता है, चाहे वो कंज्यूमर गुड की कंपनी हो उसको भी एग्रीकल्चर चाहिए होता है। तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो एग्रीकल्चर से बैक ना हो। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को समझने के लिए भी एग्रीकल्चर मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अगर हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो इसको ऐड करना चाहिए। एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि जो मैंने अभी पिछले 2-3 महीनों में टेस्ट करी है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर मैं एज ए लेमैन बात करूं, अगर कोई ट्रेडर चाहता है कि उसको 1000-2000 रुपए निकालने हैं डेली बेसिस पर, तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर आपका मार्जिन बहुत कम है। इस प्रोडक्ट के अंदर वॉलिडिटी एज कंपेयर इक्विटी के मुकाबले वॉलिडिटी बहुत हाई है। अगर हम वॉलिटिलिटी को देखें, अगर आप निफ्टी की वॉलिटिलिटी या ग्वार की वॉलिटिलिटी को चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट आप सेम वॉलिटिलिटी को पाएंगे। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको पलक झपकते ही आपको 10 से 20 रुपए की मोमेंटम मिलती है। मींस आपको 1000 से 2000 रुपए का ट्रेड आराम से मिलता है। और ये ट्रेड ऐसा है कि ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपने आंख बंद करके भी ट्रेड डाल दिया, आपने अगर ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और प्राइस को चेक करके ट्रेड डाल दिया, तो यू विल गेट 20-30 पॉइंट्स इजीली। तो आई थिंक कि इस प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ऑप्शंस जो हैं ये सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं। एग्रीकल्चर के जो ऑप्शंस है उसके अंदर लिक्विडिटी आ चुकी है और मुझे लगता है कि इसको अपने प्रोडक्ट में ऐड करना चाहिए। तो ये मेरा सबमिशन है केडिया जी फॉर दिस ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि कमोडिटी ऑप्शन काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और हम इसको ट्रैक भी कर रहे हैं और जो क्लाइंट्स हैं वो इसको धीरे धीरे अपना भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो फिजिकल ट्रेडर हैं वो अब इसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको ऑप्शन के अंदर हेजिंग करना बहुत इजी लगता है। वो अगर अपने फिजिकल प्रोडक्ट को पुट के थ्रू हेजिंग करते हैं तो उनको डबल बेनिफिट होता है, क्योंकि जो भी वो वहां पे कॉस्ट पे कर रहे हैं वो उसको बाद में जाकर अपने इनकम टैक्स के थ्रू या फिर अपनी टैक्सेशन के थ्रू भी जाकर उसको अपने उसको कवर कर सकते हैं। तो दोनों साइड से इनको बेनिफिट है। हमें लगता है कि ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को या जो फिजिकल ट्रेडर हैं उनको ऑप्शंस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। मैं जानता हूँ टाइम ज़्यादा भाग रहा है और हमारे पैनल काफ़ी लंबा है, लेकिन जो शॉर्टकट्स तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा जो नॉलेज शेयर आपने की है वो बहुत वैल्यू ऐड करता है। बट मेरा एक थोड़ा छोटा सा डाउट है, ओपन इंटरेस्ट वाला जो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, एक बार वापस आप बता सकते हैं ओपन इंटरेस्ट और प्राइस, इसका क्या कोरिलेशन और कैसे हमें पता चल सकता है डायरेक्शन ऑफ द मार्केट? प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखिए, जो आपका इसमें 3 चीजें काम करती हैं। एक प्राइस होता है, एक वॉल्यूम होता है, एक ओपन इंटरेस्ट होता है। तो अगर प्राइस मार्केट का ऊपर जा रहा है, ठीक है, साथ में अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इट मींस कि जो प्राइस है वो बैक्ड बाय वॉल्यूम है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, हम देख रहे हैं कि परसेंटेज वाइज आपको पूरी ऑप्शन चेन के अंदर पूरी डिटेल सामने मिलती है। प्राइस अगर बढ़ा है, हमने देखा कि आज प्राइस किसी परसेंट से बढ़ा है और उसके अंदर आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट शो करता है कि एक्सचेंज में ओपन पोजीशंस कितनी है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है ऑप्शन चेन के अंदर, तो आपको ये प्रेडिक्ट होता है कि प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ा है, नए पार्टिसिपेंट्स ऐड हुए हैं। और ओपन इंटरेस्ट का मतलब कि उन पार्टिसिपेंट्स की जो पोजीशन है वो बढ़ी है। इट मींस कि प्राइस के साथ साथ अगर पोजीशन बढ़ रही है, इट मींस कि जो ट्रेंड है वो मार्केट का पॉजिटिव साइड में है। इसके अगेंस्ट अगर हम देखें, अगर प्राइस नीचे गिर रहा है और वहां पे लोगों ने पोजीशन जो है वॉल्यूम बढ़ा है बट ओपन इंटरेस्ट गिरा है, तो इट मींस कि पीपल आर एग्जिटिंग फ्रॉम द बाई पोजीशन और वहां पर वो दे आर गोइंग टू सेल। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। साथ में अगर प्राइस आपका बढ़ रहा है बट वॉल्यूम भी कम हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, इट मींस कि पीपल आर एग्जिटिंग फ्रॉम द बाय पोजीशन। तो धीरे धीरे वो बाय से एग्जिट हो रहे हैं और जब वो सेल करेंगे तो आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा और प्राइस नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो इसको अगर आप ये एक दिन में नहीं समझ में आएगा, अगर आप इसको डेली 2 या 3 दिन आप इसको वॉच करेंगे, अगर ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है, आप मार्केट बंद होने के बाद जब आप इसको ऑप्शन चेन को नोट करेंगे, तो आप 1 हफ्ता अगर आपने नोट किया तो आपके सामने पूरी क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दैट इज ओनली अ 1 वीक एक्टिविटी जहां पर हम इजीली मार्केट का ट्रेंड को पकड़ सकते हैं, ग्वारेक्स के ट्रेंड को पकड़ सकते हैं, स्पाइसेस के ऑप्शंस को हम इजीली पकड़ सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको कोई टेक्निकल चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है। दैट इज ओनली फॉर द ट्रेडर्स जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि इसके बेस पर हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और इसके थ्रू हम इंट्राडे में ट्रेड अपने डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी, और गुरु मंत्र देने के लिए, क्योंकि लिटरली मेरे लिए काफी कंफ्यूजिंग रहता है ऑप्शन समझना और थोड़ा सा ओआई को समझना। आज एज ए लेमैन
मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन डिटेल्स में बताया कि वॉल्यूम का क्या इम्पोर्टेंस है, या ऑप्शंस के अंदर हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, और खास करके फैक्टर जैसे मानसून, मतलब इक्विटी के अंदर मुझे काफ़ी रेशियोज पढ़ने पड़ते हैं, बट कमोडिटी की बात करें तो मुझे लगता है खाली बरसाती, सोइंग और ये सारी इजी अवेलेबल डेटा है जिसको देखकर हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू केडिया जी। नेक्स्ट हमारे पास जो स्पीकर है, मुझे लगता है कि जब से कमोडिटी मार्केट इंडियन मार्केट में स्टार्ट हुई है, उन्होंने हर तरीके से एग्री कमोडिटी को देखा है, चाहे एक्सचेंज के साथ देखा है, चाहे हम एज ए कंसल्टेंट देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जगदीप जी की, जो एक इंटरनल पार्ट रहे हैं कमोडिटी मार्केट के लिए। ऑलमोस्ट उन्होंने 18 साल कमोडिटी मार्केट में बिताए हैं, और अभी भी अगर एग्री के बारे में उनसे कुछ भी पूछा जाए, और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट जो भी है हमारे साथ, चाहे फार्मर है, इंपोर्टर, एक्सपोर्ट, इनकी पकड़ काफी मजबूत रहती है। तो कमोडिटी में जैसे अनुज ने भी बताया कि मार्केट न्यूज क्या चल रहा है, मार्केट किस और है, क्या न्यूज है, वो इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट वेलकम जगदीप जी। मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे इक्विटी मार्केट को ऑप्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं हम लोग। ऑप्शन का रोज सुबह हम देखते हैं पीसीआर कहाँ मूव हो रहा है। ग्रीक्स एक ऐसा वर्ड है जो सुनते ही थोड़ा ऐसा लगता है कि फॉरेन वर्ड है और डर लगता है। तो खास करके हम देखते हैं कि ऑप्शन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक्स के ऊपर ही डिपेंड है, चाहे हम कॉल पुट की बात करें। लेकिन जो हमारे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट इस वर्ड से थोड़े से घबरा जाते हैं, और आप पूरे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट को अच्छे से समझते हैं। फार्मर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, स्टॉकिस्ट है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप ग्रीक्स के ऊपर, क्योंकि इसके बाद आदित्य जी का जो सेशन होने वाला है उसमें हमें कुछ अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं, बट उससे पहले ग्रीक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड लाइक कि आप थोड़े ग्रीक्स के ऊपर, और जो हमारे पार्टिसिपेंट है उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं अपने ट्रेड पे, अगर हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। जगदीप जी। थैंक यू अजय जी। एक्चुअली आपने सरप्राइज कर दिया। शेड्यूल के हिसाब से मेरा 5:50 पे आना था, काफ़ी पहले शेड्यूल कर दिया है। हालांकि मैं उसके हिसाब से तैयारी करके बैठा था कि एक डायलॉग लगाऊं कि सबसे लास्ट में आना जो है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। एडवांटेज ये है कि लगभग सब कुछ पूरा कंप्लीट हो चुका होता है, आपके ऊपर से भार काफ़ी उतर चुका होता है। और वही डिसएडवांटेज भी है, अब नया बोले क्या, ऑडियंस को एंगेज कैसे करेंगे। तो थैंक यू। और मैं ये बोलूँगा कि ग्रीक्स मेरे को भी नहीं आते हैं, पर हाँ, जितने एक वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट को आने चाहिए ना, उतने ज़रूर आते हैं। मतलब ये है कि वो उनका मतलब क्या है वही समझ जाए ना, बहुत है। बाकी वो अपने काम के हैं भी नहीं। एज सच वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा जो है ना, अब अपना ये ग्रीक्स में घुसने की ज़रूरत है, बस उनका एक वैल्यू समझ लेना एनफ है। क्योंकि उसके अलावा जिस हिसाब से वो ट्रेड करते हैं ना, तो उनकी ट्रेडिंग आज भी जो है ना, तेजी मंदी की भाषा में ही चलती है। वो जो है ना, एटीआर या कहो कि स्टोकास्टिक, बोलिंगर बैंड, फलान ढिमकान, वो कुछ नहीं समझते हैं। बट हाँ, वो पूरा समझते हैं कि लास्ट सीजन किस भाव से जो है मार्केट घूमा था, डाउन साइड के अप साइड। हाँ, कहाँ पे आके माल की सप्लाई होगी जिसको अपन रेजिस्टेंस बोलेंगे, कहाँ पे आके जो है बाइंग ज्यादा होगी जिसको अपन सपोर्ट बोलते हैं। तो टेक्निकली जो टर्म्स है वो चेंज हो जाती हैं, लेकिन एज सच वैल्यू चेन वालों को सब समझ आता है। ग्रीक्स थोड़े नए हो सकते हैं क्योंकि ये चीज जो है एक नई है अभी अपने इकोसिस्टम में। तो पहले अपने प्रोफाइल समझें, वैल्यू चेन वालों की प्रोफाइल क्या होती है। अगर अपने एक फार्मर को छोड़ दें तो बाकी सबकी जो है ना, दोनों टांगों में से एक टांग कभी ऊपर, एक टांग कभी नीचे ऊपर होती है। टांग का मतलब क्या समझते हैं कि जैसे कोई ट्रेड है, ट्रेड कब कंप्लीट होता है, बाय किया और सेल किया। जब तक आप सिर्फ बाय करके खड़े हैं तो ट्रेड आपका अधूरा है, ओपन है पोजीशन। जब वो आप सेल करेंगे तो ट्रेड आपका कंप्लीट हुआ। यानी जैसे आदमी की दो टांगे होते हैं, ऐसे ट्रेड की भी दो टांगे होती हैं, बाय और सेल। या तो आप पहले सेल वाली टांग नीचे करेंगे तो थोड़ी देर में बाय वाली नीचे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा टाइम अपन एक टांग पे रुक नहीं सकते। ठीक है। बट है कि अगर अपने को ट्रेड करना है तो पहले एक टांग नीचे करनी पड़ेगी, फिर दूसरी आएगी। दोनों एक साथ आते हैं ना, फिर वो फिजिकल वैल्यू चेन में नहीं होता है। दोनों एक साथ जो है फाइनेंशियल प्लेयर्स करते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं छोटी छोटी, या फिर हेजिंग करते हैं। जब ट्रेड में अपने जाते हैं ना, तो अपन ये कहिए कि बाय और सेल एक साथ करेंगे, कब करेंगे,
जब मार्जिन अपना इंटैक्ट हो, अपना कैलकुलेटेड मार्जिन साथ में हो, तो बाय और सेल दोनों साथ, बट वो भी साइमल्टेनियस आती है कि एक बाय और फिर सेल। जब भी इन दो चीज के बीच गैप रहता है टाइमिंग का, तो अपनी हो जाती है ओपन पोजीशन, मतलब अपने आ जाते हैं रिस्क में। तो फार्मर जो है वो हमेशा बायर साइड का रिस्क रहता है। प्रोडक्शन है उसका, उसको सेल करना है, तो वो बायर है, अभी उसको सेल करना है, तो उसका हमेशा प्राइस रिस्क जो है वो डाउन साइड का रहेगा। जबकि बाकी जितने भी हैं, स्टॉकिस्ट हो गया, ट्रेडर हो गया, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, ये दोनों टांग जो है बदलते रहते हैं मार्केट की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। उनको आगे मंदी लग रही है तो अभी सेल करेंगे, बाद में बाय करेंगे। आगे तेजी लग रही है तो पहले बाय करके चलेंगे, आगे सेल करेंगे। तो इसका मतलब है कि मार्केट में दो ही चीज होती है, तेजी या मंदी। बट ऐसा नहीं है। वो कब पता चलता है? वो तब पता चलता है जब अपनी ट्रेड का एक लेग नीचे आ चुका होता है। भी स्टॉकिस्ट है या ट्रेडर है, तेजी लग रही है, माल ले लिया, पर अब मार्केट पड़ा हुआ है, तेजी चली नहीं रही, उल्टा जो है 4-5% नीचे आ गया। अब क्या? तो भैया मार्केट में तेजी और मंदी के अलावा भी कुछ होता है। वो क्या होता है कि तेजी नहीं है, मंदी नहीं है, तेजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मंदी तो नहीं है, तेजी हो के हो पता नहीं है। जब ये अनसर्टेनिटीज होती है ना, तब टूल्स काम आते हैं, और अनसर्टेनिटीज के लिए ही ऑप्शंस है। जब आपको क्लैरिटी है, तेजी है, 100% मजबूत भाई तेजी है, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं माल पकड़ के बैठे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। टूल्स कब काम आते हैं? अनसर्टेनिटीज। और अपने को मदद भी कब चाहिए होती है? जब अनसर्टेनिटी हो। अपन दूसरे से सलाह भी कब लेते हैं? जब अनसर्टेन हो। जब तक अपना ट्रेड सही चल रहा है ना, तो हम किसी के बाप को पूछते ना खुद को पूछते, चल रहा है अपना। तो जब अनसर्टेनिटी हो, उस टाइम पे ऑप्शंस काम में आते हैं। जब अनसर्टेनिटीज में काम आ रहे थे, तो अनसर्टेनिटीज किस किस चीज की होती है? कि भी तेजी कब आएगी, टाइम की अनसर्टेनिटी होगी। तेजी किस लेवल की आएगी, 5%, 10%, ऊपर नीचे कितना हो गया, वोलेटिलिटी की होगी। मतलब ये है कि जो चीज आपको अनसर्टेनिटी आप प्राइसिंग कर रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ भाव का नहीं है अनसर्टेनिटी, आपको टाइम का अनसर्टेनिटी है, आपको प्राइस के मोमेंटम का अनसर्टेनिटी है। तो वो चीज भी जो है फिर ऑप्शन के प्राइसिंग में आएंगे। मतलब जब आप ऑप्शन के प्राइसिंग से डील कर रहे हैं, तो ना सिर्फ भाव को, आप अपने टाइम पीरियड को और प्राइस की वॉलेटिलिटी को, दोनों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये दो चीज ऐसी हैं जो अगर अपने ध्यान में रहेंगी, तो अपने को बाकी ग्रीक्स देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? मतलब अपन ऑप्शंस में क्या करते हैं? दो ही चीज करते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो कब बाय करेंगे और कब सेल करेंगे? जब आप सर्टेन हो कि तेजी आएगी ही आएगी और जल्दी आएगी। यानी कि टाइम पीरियड जो है, ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद तेजी आएगी, वो जल्दी नहीं है। आप इस मंथ का ऑप्शन अगर बाय कर रहे हो कॉल, तो तेजी है और इसी महीने में आएगी, तो आप कॉल बाय करोगे। आपको ये है कि तेजी तो है बट अभी नहीं है, बट मंदी भी नहीं है, कितने टाइम तक? या 2-3 महीना नहीं लग रहा है। तो जब अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, तो उस टाइम पे आप चीजों को सेल करोगे, और टाइम पीरियड आप उसमें कंसिडर करोगे कि आपको लग रहा है महीने 2 महीने ये सर्टेन है कि भी ना तेजी है ना मंदी है। तो आपका जो एक्सपोजर है, उसके सामने आप जो है चीज को सेल करोगे। आपका एक्सपोजर बाय साइड का है, आपके पास जीरा पड़ा है, जैसे नितिन जी ने बोला था शुरुआत में, कि भी किसी के पास रिलायंस पड़ा है तो वो ढूंढ ढूंढ के निकालते थे कि आपका मकान खाली पड़ा है, किराए पे चढ़ा दो। तो आपके पास डीमेट में जीरा पड़ा है, या वैसे भी आपके पास है और आप डीमेट करा के डिलीवर कर सकते हो, आपके पास उतनी तेवड़ है, तो आप सामने कोल सेल कर दीजिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको है कि भाई अगले 1-2 महीने तो तेजी है नहीं। जब तेजी है नहीं, तो आपके जो प्राइसिंग है ऑप्शन का, उसके अंदर टाइम पीरियड, वोलेटिलिटी और डायरेक्शन, तीनों चीज आ गई। तेजी नहीं है तो ऑब्वियसली आपका प्रीमियम घटेगा। जब प्रीमियम, जो चीज घिस रही है उसको तो आप बेचोगे ही ना, सिंपल। तो ऐसे ही अगर आपका सेल साइड का एक्सपोजर है, आपको लग रहा है कि भाई मंदा होगा तब मैं खरीदूंगा, लेकिन अभी लग नहीं रहा है, महीने 1.5 महीना मंदा होगा बाजार, तो आप क्या करोगे? पुट सेल कर देने का। उसमें फायदा क्या है पुट सेल में और कॉल सेल में? कि भाई आपने सेल किया हुआ है माल पहले से, आपको कवर करना है, पुट सेल कर दिया आपने। मान लो बाई चांस, खुदा न खास्ता, 100% कोई श्योर नहीं होता, मंदी होगी, आपका जो है कॉल वो पुट इन द मनी आ गया, कोई नहीं, आपने सामने बेच ही रखा है, इधर से कवर हो गया, उधर से उठा के डिलीवरी दे दो आपने। आप ऑलरेडी जो है, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको डिलीवरी लेना, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो आपके लिए अच्छा ही है,
कि डिलीवरी आ भी गई। तो ऐसे आपके पास माल पड़ा है, आपने ऊपर की कॉल बेच दी, इसमें के भी अभी तेजी नहीं लग रही है, मान लो तेजी हो गई, आपके पास माल था, प्रॉफिट ही बुक होगा, नुकसान तो नहीं है। तो ये जो टूल है, जो अनसर्टेनिटी का आपका एक टूल है कि भाई आपकी एक टांग नीचे है, तो ये टूल आपकी लकड़ी है, इसको पकड़ के खड़े रहेंगे तो दूसरी टांग थोड़े ज्यादा लंबे समय तक आप ऊपर रख सकते हो। फ्यूचर्स है, बट फ्यूचर्स जो है ना वो लकड़ी नहीं है, वो ऊपर से लटकती हुई रस्सी है, हाथ भी दुखेगा आपका और नीचे की टांग भी दुखेगी, M2M और उन सब के चक्कर में। इसमें फिक्स है कि लकड़ी की कोष्ठा आपकी एक रख के खड़े हो गए। तो इन सिंपल अजय जी के ग्रीक्स मतलब आपके टाइम, अनसर्टेनिटी और आपकी डायरेक्शन, यही चीज है। टाइम को अपन उसमें थीटा बोल देते हैं, आपकी जो है प्राइस से रिलेटेड जो मूवमेंट है उसमें अपन डेल्टा बोल देते हैं, जो मूवमेंट है कि उसके हिसाब से आएगा कि नहीं आएगा, गामा के हिसाब से आपकी जो है वो चेंज होती रहेगी। तो वो चीजें आप ना करें। थोड़े दिन पहले आपके एक सेमिनार में था केडिया जी कि अपन बोलते हैं कि स्ट्रैंगल स्ट्रेडल, तो उसका बड़ा अच्छा जो है वो मेरे को याद रहेगा कि त्रिशूल या 1/2। तो वो स्ट्रेटजीज तो अपने सिर्फ इतना समझे कि ग्रीक्स ठीक है कि नोमेनक्लेचर अपन ने बाहर से लिया है, अपन यहाँ पे इतना रखें कि टाइम के हिसाब से जो है ना ऑप्शंस की वैल्यू गलेगी। जितना दूर का होगा उतना महंगा होगा क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा है, जितना नजदीक का होगा उतना सस्ता होगा, फास्ट गलेगा क्योंकि एक्सपायरी नजदीक आ रही है। आपको जितनी क्लैरिटी आती जाएगी, आपको जो है गली में खड़े हो कॉर्नर तक दिख रहा है आपको, ठीक है, बट उसके पीछे क्या है वो आपको नहीं दिख रहा, वो तो आपको कॉर्नर पे आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप कॉर्नर के पीछे क्या है उस अनसर्टेनिटी के लिए ज्यादा पे करोगे, बट आपको गली में तो पूरा ही दिख रहा है ना, सिंपल है। तो ये अनसर्टेनिटी। फिर आपकी प्राइस मोमेंटम, अब जब प्राइस आपका जो है रोज 5 रुपया 10 रुपया ही घूम रहा है, जीरा 200 रुपए किलो वाली आइटम क्विंटल पे 5 रुपया 10 रुपया घूम रहा हो तो मोमेंटम है ही नहीं, तो अनसर्टेनिटी है नहीं, आपको मौत होनी क्या, आप भी सोच रहे हो यार मार्केट में जो है वोलेटिलिटी ही नहीं है कि होगा क्या, अगर मैंने जीरा ले भी लिया खड़ा भी रहा तो ठीक है 5 रुपया ही मूवमेंट है, आप क्या उसकी वैल्यू करोगे, कुछ नहीं। बट हाँ उस टाइम पे वदगट आ रही है आपकी क्विंटल पे 500 रुपया की 600 रुपया, तो सबके हाथ खिल जाएंगे ना यार, अब खुला नहीं रख सकते, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो वही आपका जो है इसमें आ जाएगा। अब ग्रीक्स भूल जाओ, वोलेटिलिटी, टाइम जो आपको नहीं दिख रहा, तो जिस चीज से जितनी अनसर्टेनिटी वो चीज आपको समझ के चलने की, और वही ग्रीक्स हैं आपके बस कि जो चीज क्लियर नहीं हो रही है और जिसमें जितनी अनसर्टेनिटी उसके हिसाब से अपने को डिसीजन लेने का है। और मार्केट में सिर्फ तेजी मंदी नहीं होती, बाकी चीजें भी होती हैं कि तेजी नहीं होगी, मंदी तो नहीं है बट तेजी भी नहीं होगी, तेजी तो नहीं है पर मंदी भी नहीं होगी। तो जब आप एकदम सर्टेन हो किसी चीज के बारे में तो उस डायरेक्शन की ऑप्शन आपको बाय कर लेना है। जब अनसर्टेनिटी हो कि नहीं होगी उस टाइम पे उस डायरेक्शन का आपने सेल कर देना है। दूसरा कोई इसमें जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी प्रैक्टिस और नॉलेज उसका कोई जो है क्या कहें कि सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। इसके अलावा कभी भी कोई चाहिए तो ऑलवेज देयर। थैंक यू। धन्यवाद जगदीप जी। और जो आपका सवाल था कि हमने आपका सेशन प्रीपोन क्यों किया, उसका कारण यही था क्योंकि जो जिस ढंग से आप बताते हो, जो बोलते हैं रूट वाली लैंग्वेज, तो वो इतनी मजबूती से समझ में आ जाती है। इसके लिए मैं रहा नहीं गया कि आपको मैं 5:50 की जगह पे थोड़ा पहले बुला लिया, ताकि आदित्य जी का जब सेशन होगा तो डेफिनेटली सबको जो ग्रीक्स नहीं समझना है, हमें जो फैक्टर समझना है जो आपने बताया है, वो जल्द समझ में आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने बताया है, मुझे नहीं लगता है हम 120 के ऊपर पार्टिसिपेट थे, किसी को भी नहीं समझ में आएगा। मैं देख भी रहा था स्क्रीन के ऊपर तो कुछ थम्स अप, क्लैप, ऐसे रिएक्शन आने लगे। तो पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट है, चैट विंडो ओपन है, देखिए साइट में वापस थम्स अप आने चालू हो चुके। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप चैट विंडो पे डालिए, और रिएक्शंस भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है वेबएक्स के, तो उसका पूरा भरपूर उपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी, आपने जिस लैंग्वेज में, और जो ग्राउंड लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट होती है, और वो आपने अच्छे से नर्व्स को पकड़ा और समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आ जाते हैं अगले पड़ाव पे, जहाँ पे आदित्य जी एक्सचेंज से भी हमने देखा उनका कैरियर, और साथ में अभी एक्टिवली ऑप्शंस के अंदर काम
कर रहे हैं और मैंने भी काफ़ी टाइम उनसे सीखा है, मिला भी हूँ मैं उनसे। और एक बार मैं इंदौर गया हुआ था, तब डेफिनेटली हम लोग काफ़ी टाइम बैठे भी। और जिस ढंग से इनका गोल या ओवरव्यू है ऑप्शन को लेकर, हेड्स ऑफ, लिटरली मैंने जब देखा तो बोला इतना भी कुछ क्योंकि जब हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे वो टाइम पे कमोडिटी में ऑप्शन नहीं हुआ करता था और मेरा फोटे हमेशा कमोडिटी 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 रहा है। तो जब मैं सुनता था तो बोला डेफिनेटली अगर कमोडिटी में अगर ऑप्शंस आ जाएंगे तो मैं इस पे वर्क करूंगा। और आज ऐसा मौका बना कि आदित्य जी को ही हमने बुला लिया कि ऑप्शंस, और वो भी एग्री के अंदर, तो डेफिनेटली मिला। तो वेलकम आदित्य जी। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ज्यादा करके जब भी हम लोग ऑप्शंस की बात सुनते हैं तो ऑलरेडी नितिन जी ने भी और वाधवा जी ने भी इस पे क्लैरिटी बताई है। और खास करके अगर जगदीप जी की बात करें तो जिस लैंग्वेज में बताया, तो मुझे नहीं लगता अब कोई डर होना चाहिए। बट फिर भी अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं बहुत कंफ्यूज रहता है कि कैसे ऑप्शन में ट्रेड करें। बहुत मतलब टीडियस लगता है। कभी बोलते हैं वॉल्टिटी को देखो, कभी बोलते हैं डेल्टा चेंज को देखो, कुछ ना कुछ चीजें, तो कंफ्यूजन काफी रहता है। और जब मौका मिला है तो मैं एक दो क्वेश्चन एक साथ ही आप पे थ्रो कर देता हूं ताकि अच्छे से मैं समझ पाऊं। दूसरा है कि फ्यूचर ज्यादा अच्छा है कि ऑप्शन? नो डाउट हमने प्रीवियस स्पीकर से सुना भी है कि फ्यूचर फांसी का फंदा है, बट ऑप्शन की बात करें तो वो एक हेल्पिंग हैंड है एक तरह का। तो और उस पे आपको क्या लगता है? एंड मैंने बार बार में ये भी सुना है, अरे नहीं ऑप्शन हमारे बस की बात ही नहीं है, ये तो जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो अच्छी बड़ी पूंजी लगा के काम कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन होता है। ये फार्मर्स के लिए या फिजिकल ट्रेड जो करते हैं इनके लिए नहीं। क्योंकि ऑप्शन को समझना एक एक तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे हम इक्विटी के एनालिसिस करते हैं तो ये सीए होना बहुत जरूरी है, रेशियो समझना जरूरी है, क्या इंपैक्ट है वो सब समझना है। तो एक भ्रम ये भी बना हुआ है कि ऑप्शन समझना एक प्रोफेशनल ट्रेडर का ही काम है, और छोटे या नॉर्मल आदमी, अगर कोई व्यापारी है जो फिजिकल मार्केट से काम करते हैं, उनके लिए ऑप्शन समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करें, और फ्यूचर ऑप्शन के अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑप्शन क्यों बेस्ट है। एंड लास्ट, जो प्रोफेशनल्स है उनके लिए ऑप्शन बना है, आम आदमी के लिए नहीं बना है, उसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए आदित्य जी। नमस्कार सभी को। थैंक यू सर मेरा नंबर लास्ट रखने के लिए, क्योंकि जगदीप जी ने और अनूप जी ने और बाकी नितिन सर वगैरह सभी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। बट ये अभी तक स्क्रीन के उस साइड था, अब स्क्रीन के इस साइड हूँ। तो यस, चीज़ें क्योंकि ये लिक्विड मार्केट में सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखती है। ऑप्शंस के बारे में सब कुछ ऑलरेडी, बहुत सारा सब कुछ थ्रू इतनी वेबिनार्स, इतने इवेंट्स, सब कुछ देखने को मिले होंगे। बट जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को ट्रेड करते हो, तो जैसा आपका पहला क्वेश्चन था, तो मेरा भी मेरे कुछ फ्रेंड्स, कुछ ट्रेडर्स होते हैं, कुछ फिजिकल ट्रेडर्स होते हैं, उनसे डे टू डे रूटीन में जो बातें होती है सर, वहाँ पे भी यही होता है कि ऑप्शंस लिक्विडिटी नहीं है तो ट्रेड कैसे करें। आई मीन मुझे पता है कि ये व्यू है मेरा, मुझे पता है कि अभी मार्केट रेंज बाउंड होने वाला है, मुझे ये भी पता है कि अभी मार्केट बियरिश होने वाला है। तो सारे मार्केट के समीकरण उनके पास पहले से रहते हैं। ब्रॉडली मार्केट का व्यू, मार्केट की धारणा उनके पास पहले से रेडी रहती है। बट उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मुझे ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे करनी है। तो अजय सर, आज की तारीख में एक्सेल, इवन मोबाइल पे इतने सारे एप्स अवेलेबल हैं, आप सिर्फ 2 या 3 नंबर डाल के, और मुझे नहीं लगता कि फिजिकल मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उनसे बेस्ट इस चीज की एक्सपर्टाइज किसी के पास हो। तो मैं सर परमिशन चाहूंगा कि एक बार स्क्रीन पे दिखाऊं पहले, क्योंकि जितने भी मेरे साथ जो फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, राइट, या जो भी मेरे साथ ट्रेड करते हैं, जो मैं भी ट्रेड करता हूं, चाहे इक्विटी में या कमोडिटीज में, ऑप्शन में स्पेसिफिक, अगर मेरे पास पहले से रेट पता हो जाए, मुझे क्या XYZ ऑप्शन है, उसका थ्योरेटिकल प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड मार्केट में तो हमें पता है कि यार बाय सेलर है। बट अगर ऐसा रेट मुझे पहले से रेडी हो जाए जिस पे मैं रेडी हूं ट्रेड करने के लिए, तो मैं मेरी स्क्रीन आपको एक बार शेयर करता हूं। सर मेरा स्क्रीन विजिबल है अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा स्क्रीन साइज ये बड़ा कर देता हूँ, राइट। सो ब्रॉडली एक एग्जांपल लूँ मैं, हमें
पता होता है कि मार्केट में फ्यूचर प्राइस है, हमारे पास क्या एक्सपायरीज हैं, राइट, आज की डेट मेंशन है, ये हमारा रिस्क इंटरेस्ट रेट होता है ब्रॉडली। मैं एक बार उनकी साइज आपको जो मैंने पुट करी वो इजीली दिख रही है आपको सब। हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वोलेटिलिटी, यानी अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि इस साल का रिलेशन पिछले किस साल से जाता है, अगर मैं वो नंबर यहाँ पे पुट कर दूं, एग्री की से सबसे अच्छी ब्यूटी ये होती है कि ये कहीं ना कहीं एवरेज को रिस्पेक्ट करता है, जिसको अपन मीन रिवर्सल बोलते हैं, राइट। अगर मैं ये बोलूं कि इस साल का रिलेशन पिछले ऐसे किसी साल में जब सेम डिमांड सप्लाई का पैटर्न था, जब सेम क्रॉप का पैटर्न था, राइट, सेम इन्वेंट्री का पैटर्न था, अगर उस साल की वोलेटिलिटी को मैं इस साल की वोलेटिलिटी से कंपेयर करूं और मैं उस थ्योरेटिकल रेट को निकालूं, लेट्स से मैंने अभी 22% की वोलेटिलिटी ली है साल की, राइट, तो अगर लेट्स से मुझे लग रहा है कि यार मुझे 24,000 का जो स्ट्राइक है उसका रेट जानना है कॉल का, तो सीधे सीधे मुझे यहाँ पे मिल गया कि उसका प्राइस होना चाहिए 329। आप इजीली देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि यहाँ पे हमें इस कॉलम में थ्योरेटिकल प्राइस मिल जाता है कॉल का, राइट, और सेम इसी चीज में मुझे सेम थ्योरेटिकल प्राइस मिल जाता है पुट का। तो सबसे बड़ा जो दिक्कत मैंने मेरे फ्रेंड्स में या जो मेरे ट्रेडर कम्युनिटीज में जो भी मेरे मित्र हैं कि प्राइसिंग कैसे करना है, और मेरा ये बोलना है कि सेम मॉडल में इक्विटीज में भी यूज करता हूं, सेम मॉडल मैंने कमोडिटीज में क्रूड एंड गोल्ड में भी यूज करता हूं। अगर आपको ये रेट मिला है, लेट से मुझे 24,000 की कॉल का रेट मिला है, रफली 329 या 330 राउंड फिगर है, तो मेरा बोलना आप इसमें 3 to 5% और अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए प्राइस में, राइट। अगर आप सेलर हो तो, और आप बायर हो तो इसको 3 to 5% डिस्काउंट कर दीजिए। और जब तक आप बीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट इलिक्विड है, अजय सर आप अच्छे से जानते हैं कि हम पहले लिक्विडिटी आएगी तब मैं बिड पुट करूंगा, या पहले बिड पुट करूंगा तब उसके बाद लिक्विडिटी आएगी, तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो सकती है। हमारे पास व्यू होता है, हमारे पास स्ट्रेटजी अवेलेबल होती है। मैं ब्रॉडली स्ट्रेटजी पे आज ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जगदीप जी ने और बाकी सब शेयर कर दिया है, बट मेरा ये मानना है कि मैं कभी भी फ्यूचर में अगर ट्रेड करना है मुझे, तो उसके पहले मैं मेरा ऑप्शन को हेज जरूर करता हूँ ओवरनाइट। यानी जब भी हमारा इस तरह का माहौल होता है, जब मुझे कोई अनसर्टेनिटी दिखती है कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा ट्रेंडिंग भी हो सकता है, बड़ा फॉल भी हो सकता है, राइट, एंड मुझे लग रहा है कि डेटा साइड में मुझे कहीं से ग्रोथ दिख रहा है कि मैं बाइंग साइड में जाने वाला हूं, राइट, मुझे फ्यूचर बाय करना है, बट मैं ओवरनाइट स्टॉप लॉस तो नहीं डाल सकता, मैं ओवरनाइट रिस्क मैनेजमेंट तो नहीं कर सकता, क्योंकि कितनी बार आप देख सकते हैं कि सडन गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण भी मार्केट में ऊपर नीचे मूवमेंट आ जाता है। सर कोई क्वेश्चन था? सॉरी, नहीं कंटिन्यू। इनफैक्ट ये एक्सेल ऑलरेडी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है एनसीडीएक्स की, इसके n नंबर ऑफ ऐप अवेलेबल है। आप अगर एंड्रॉइड या जो भी मोबाइल यूज करते हैं, आप अपने मोबाइल से थ्योरेटिकल प्राइस निकाल सकते हैं, इतना सिंपल है। तो मैंने सेम चीज यहाँ पे किया है, मैंने थ्योरेटिकल प्राइस निकाली है, और लेट्स से मुझे मार्केट में पर्टिकुलर कमोडिटीज में बाइंग लग रही है, राइट, और मुझे मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो मैं पहले थ्योरेटिकल अपना मार्केट बंद होने के बाद अपना होमवर्क रेडी रखता हूं कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट में पर्टिकुलर कमोडिटीज में मार्केट में मेरा व्यू बुलिश है, बट आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। सर मेरा आवाज अच्छे से आ रहा है? परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। सो मुझे लग रहा है कि मुझे फ्यूचर बाय करना है, बट फ्यूचर में तो सर रिस्क है कि कल गैप डाउन भी खुल सकता है, क्योंकि स्पेशली हम जिस टाइम पे हैं, चाहे वो सोइंग टाइम हो, चाहे वो रेनी, स्पेशली बारिश की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं एक स्पेकुलेशन है मार्केट में, और वो दोनों साइड के स्पेकुलेशन सही हो सकते हैं। नॉन स्टॉप मार्केट बुलिश भी हो सकता है, नॉन स्टॉप बियरिश भी हो सकता है, और मैं ओवरनाइट रिस्क को कंट्रोल फ्यूचर में उतना बेटर नहीं कर सकता जितना मैं ऑप्शन में। तो ऐसे माहौल में मैं हमेशा पहले पुट में बिडिंग करता हूं, जैसे ही मेरा पुट का ट्रेड हो जाता है, राइट,
मैं मेरा फ्यूचर का ट्रेड इनिशिएट करता हूं, तो मुझे पता है कि इससे ज्यादा मुझे अब लॉस होने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करी है, राइट। जब तक मेरा पुट यानी रिस्की पार्ट जो होता है हम उसको सबसे पहले ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। कमोडिटीज में हमेशा जब इलिक्विड मार्केट में आप ट्रेड करें, उसमें एक चीज सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव है कि जो रिस्की पार्ट है, हमें पता है फ्यूचर हम बाय सेल कभी भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरा पुट का बिडिंग रेट पास होगा, मैं मेरी फ्यूचर में ट्रेड कर सकता हूं, राइट। तो सर स्ट्रेटजी इजीली अवेलेबल है। सबसे बड़ा जो मुझे गैप दिखता है वो प्राइसिंग को लेके दिखता है। तो आदित्य जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। मतलब अगर सपोज आज तेल का भाव 24,100 है और मुझे माल चाहिए, लेट से मैंने पकड़ रखा है कि मुझे 23,500 में अगर मेरे को माल चाहिए, तो मैं ऑप्शन के जरिए 23,500 में माल ले सकता हूं। इसका मतलब अगर जो पुट बेचकर, जैसे नितिन जी ने भी बताई थी स्टडी, तो अगर मैं 23,500 का अगर कॉस्ट पकड़ना चाहूँ तो मेरे को थोड़ा सा एक लाइव दिखा सकते हैं बिल्कुल कि सर, अगर मुझे बिल्कुल माल सर। लेना है तो 23,500 पे मैं क्या भाव में मेरा माल डाल सकता हूँ? ओके। सर अगर आप फिजिकल मतलब आप ये चाहते हैं कि आपको 23,500 आप मार्केट में एक्सपेक्ट करें कि मार्केट बुलिश होने मैं वाला चाहता है। हूँ मुझे सस्ता माल चाहिए, 24,000 का भाव है और मुझे लेना है, बट सस्ता लेना है मुझे। ओके ओके। सो ब्रॉडली अगर आपका व्यू ये है कि आपको मार्केट में नीचे माल चाहिए, बट अभी करंट सिनेरियो में मार्केट नॉन स्टॉप जो बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ न्यूज, एन नंबर ऑफ स्पेकुलेशन न्यूज के कारण, राइट। तो सबसे बेस्ट है कि मैं 23,500 का सेम टाइम पे कॉल बाय कर सकता हूं, राइट। और जैसे ही मेरा ये बाय इनिशिएट होगा, राइट, थ्योरेटिकल प्राइस से मैं इसको हेज करूंगा 24,500 से। क्योंकि सर कमोडिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि अपर साइड भी एक लिमिटेशन होती है। ये इक्विटी मार्केट जैसा नहीं है कि 100 रुपीज का स्टॉक 1000 2000 हो सकता है, राइट। मुझे पता है कि यार अपर लेवल पे अगर जैसे ही मार्केट गया तो सप्लाई भी रेडी हो जाएंगे, राइट। तो मैं नॉर्मली दोनों साइड प्ले कर सकता हूं। अगर मुझे छोटी तेजी लग रही है तो मैं पुट से स्ट्रेटजी बना सकता हूं। मुझे बड़ा मूवमेंट दिख रहा है तो मैं कॉल से भी बना सकता हूं। और मुझे उससे भी बड़ा मूवमेंट लग रहा है तो मैं फ्यूचर के साथ विथ ऑप्शन भी जा सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छी मतलब मेन जो कंसर्न रहता था प्राइस का, वो आज इस एक्सेल को देखकर हम पता कर सकते हैं कि अगर मुझे सस्ता लेना है तो क्या भाव में लेना, उसका क्या प्राइस है। और वैसे ही अगर मेरे स्टॉक को अगर मेरे को हायर भाव में बेचना है तो मैं उसी चीज का यूज कर सकता हूँ। लेट से 26,000, तो 26,000 का कॉल अगर मैं देखूं तो मुझे अभी से प्राइस मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। इनफैक्ट सर सबसे बड़ा एडवांटेज इस ऑप्शन मार्केट में एक और बड़ा होता है जो आपने फ्यूचर से डिफरेंशिएशन के लिए मुझसे पूछा था, कि फ्यूचर में मेरे पास सिर्फ दो ही थॉट होती है ब्रॉडली। मार्केट बुलिश लगेगा या बियरिश, मार्केट ऊपर जाते हुए दिखेगा या नीचे, या मुझे कैलेंडर स्प्रेड्स दिखेंगे जहां पे मुझे प्रीमियम का या डिमांड सप्लाई बेसिस पे वो प्रीमियम श्रिंक होगी, कम होगी, या मार्केट में प्रीमियम बढ़ेगी करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ में। बट ऑप्शन का सबसे बड़ा सर एक और एडवांटेज है कि मेरे पास 60-70% टाइम मार्केट में मेरा कोई व्यू नहीं है। मुझे पता लग गया कि जितना सप्लाई आना चाहिए था आ चुका है, जितना रेंज की न्यूज आनी चाहिए थी आ चुकी है। तो ऑलमोस्ट मोर देन 17 स्ट्रेटजी सर ऐसी अवेलेबल है ऑप्शन में जब मेरे पास मार्केट की कोई व्यू नहीं है कि ना वो ऊपर जाने वाला है ना नीचे जाने वाला है, बट मुझे पता है कि ना ये अपर जोन तोड़ने वाला है ना ये लोअर जोन तोड़ने वाला है। तो भी मैं मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। यानी कितनी बार हमारे पास फ्यूचर में स्ट्रेटजी लिमिटेड होती थी, राइट, बट जब रेंज बाउंड मार्केट होते हैं, साइडवेज मार्केट होते हैं, राइट, तो भी हम ऑप्शन के थ्रू इस तरह की स्ट्रेटजी को प्ले कर सकते हैं। तो फ्यूचर विथ ऑप्शन, सर मार्जिन की बात करूं, मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं, मेरे पास साल भर कुछ न कुछ काम ऑप्शन में रहता ही है। बिल्कुल। तो आदित्य जी, अगर मैं सम अप करता हूँ, एक चीज तो आपने ये ग्रिक्स कैलकुलेटर बता के काफी हेल्प किया है कि अगर एक्सपोर्टर हूँ या इंपोर्टर हूँ, मुझे कभी भी अगर माल लेना है या मेरे स्टॉक को हायर लेवल पे बेचना है, तो इसके जरिए मैं एक फेयर प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूँ कि आज के हिसाब से अगर मैं देखूँ ऑप्शन के अंदर तो क्या भाव पे मैं ले सकता हूँ। अगर मैं सम अप करूँ, जैसे इक्विटी के अंदर हम देखते हैं कि काफी ट्रेडर्स लगे रहते हैं कुछ ना कोई स्ट्रेटेजी को लेकर। तो इन डिटेल तो हम थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है, बट अगर मैं टॉप 3 स्ट्रेटेजी आपसे पूछूं मैं कि ऐसे
अजय सर, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, आई एम सो सॉरी। Aditya, I think we've lost Ajay. Probably he'll join back. बट I think what he, I क्वेश्चन think, मुझे क्लियर है, अगर आप yeah, परमिशन दें तो please go ahead. Please go ahead, Aditya. Please go ahead. सो एज अ ट्रेडर मैं भी 3 ही स्ट्रेटजी यूज करता हूँ मार्केट में, राइट। मोर देन 24 स्ट्रेटजीज अवेलेबल है मार्केट में, बट एज अ ट्रेडर मैं ब्रॉडली 3 ही व्यू होते हैं मेरे भी, राइट। पहला व्यू होता है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है, तो मैं सीधे सीधे फ्यूचर बाय करके पुट बाय करके हेज कर लेता हूँ, राइट, जो कि मेरे लिए ओवरनाइट स्टॉप लॉस रेडी रहता है मेरे लिए। या मुझे लग रहा है कि मार्केट बियरिश है तो मैं फ्यूचर सेल करके कॉल बाय कर लेता हूं। ये मेरा प्राइमरी, जब मुझे बड़े मूवमेंट दिखते हैं, जब मुझे डायरेक्शनल क्लियर हो जाता है कि शॉर्टेज दिख रही है माल की, मुझे कुछ सिंगल डायरेक्शनल मूवमेंट दिख रहा है, या इस बार स्विंग बहुत ज्यादा हुई है और सप्लाई बहुत आने वाली है, राइट, तो ये एक स्ट्रेटजी में सबसे ज्यादा यूज करता हूं। जैसे ही मार्केट में मुझे पता लग गया कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है, जितना मार्केट में क्रॉप एक्सपेक्टेड थी वो पता लग चुका है, बारिश के बारे में मुझे पता लग चुका है, गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ बड़ा चेंज नहीं होने वाला है, बट मुझे पता है सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ऑप्शन की जो प्राइस है, राइट, उसमें टाइम का एक बड़ा रोल होता है। टाइम यानी टाइम डिके, क्योंकि हर दिन उसमें प्रीमियम गलने वाली है, राइट। जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे बाय करते हैं, हमें पता है कि अगर साल भर में कुछ नहीं हुआ तो वो जीरो होनी है, बट वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी उसी को एज अ प्रीमियम कलेक्शन की तरह यूज करती है। तो अगर मैं देखूं कि कमोडिटी मार्केट में सबसे बड़ा रोल होता है साइडवे मार्केट का, कहीं ना कहीं मीन रिवर्सल है, वो एवरेज के पास आने की कोशिश करता है। आज आप जितनी भी कमोडिटी देखें 70% टाइम वो रेंज बाउंड या साइडवे जोन होते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी जो मुझे अच्छी लगती है, मैं मोस्टली कॉल पुट्स दोनों सेल करता हूं, राइट, एट द मनी की कॉल पुट सेल करता हूं एंड ऊपर से उनको हेज कर लेता हूं। कि अगर मैं ब्रॉडली देखूं कि एज अ फिजिकल ट्रेडर या एज अ मार्केट में कमोडिटी ट्रेडर, हमें ये तो आइडिया लग जाता है कि यार मार्केट लेट से किसी का प्राइस 23,000 है तो 24 नहीं तोड़ने वाला है, 22 नहीं तोड़ने वाला है, इतने क्लूज बहुत इजीली लग जाते हैं। बट अगर मैं इसी के साथ ऑप्शन में प्ले करूं इसी स्ट्रेटजी को, तो मैं सेम टाइम 24,000 की कॉल सेल कर सकता हूं एंड 23,000 का पुट सेल कर सकता हूं, क्योंकि वो दोनों चीजें, वो दोनों स्ट्राइक जीरो होने के लिए ही बनी है, राइट। तो मेरा नॉर्मली ट्रेडर से या स्पेकुलेटर से 2 रिक्वेस्ट रहता है। पहला, जब भी आप ऑप्शन बाय करें, कोशिश करके एट द मनी या इन द मनी में ही बाय करें, क्योंकि आउट ऑफ द मनी बनी ही जीरो होने के लिए। माना आउट ऑफ द मनी सस्ती होती है, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी गलती होते हुए ट्रेडर को देखा है। ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा वर्कशॉप मैंने लाइव कंडक्ट की है अभी तक, टच वुड, बट एक ही गलती सबसे ज्यादा रिपीट होते हुए देखा है। अगर आपने सही स्ट्राइक नहीं यूज करी तो ऑप्शन आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। इसका मतलब ही यही कि अगर मुझे लग रहा है कि गोवा सीट 5000 से 5100 होने वाला है, फ्यूचर में पूरे 100 रुपीज मिलेंगे, अगर मैंने 5100 का 5200 का कॉल बाय भी कर लिया है, राइट, और मार्केट वहां तक नहीं गया, भी मुझे उस ऑप्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाला। जैसे जगदीप सर ने बोला कि आपको डेल्टा, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, इसीलिए इन द मनी और एट द मनी में अपॉर्चुनिटी बायर के लिए ज्यादा होती है, तो इसीलिए आउट ऑफ द मनी में अपॉर्चुनिटी राइटर या सेलर के लिए ज्यादा होती है। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरा इसके लिए रिक्वेस्ट रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस ढंग से आपने ग्रीक्स और खास करके जो ग्रीक्स से डर लग रहा था, ऑप्शन से डर लग रहा था, मुझे लगता है जगदीप जी ने और आदित्य ने इस अच्छे ढंग से बताया कि अब डर नहीं लगता। अब डेफिनेटली हम ये एक्सेल पे फेयर प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एप्स भी मैंने सुना मिलते हैं जहां पे अगर आप इनपुट्स डालेंगे तो आपको एक एक्चुअल प्राइस मिल जाएगी क्या होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम कंप्लीशन पे है। अगर हम एज ऑफ नाउ अगर सम अप करते हैं तो आज के सेशन में सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट के अंदर काफी अपॉर्चुनिटीज बनी हुई एग्री में, जिस ढंग से पिछले 1.5-2 सालों के अंदर मोमेंटम बना है। तो चाहे हम इंडेक्स की बात करें, चाहे हम ऑप्शंस की बात करें, तो वाधवा जी ने भी इस चीज के ऊपर काफी प्रेशर करके बताया है कि अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। वन शुड लुक एग्री, और खास करके ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे मल्टी चीजें हमारे साथ उभर कर आती है।
नितिन जी ने खास करके मुझे एक चीज जो रजिस्टर हो गया है माइंड में वो है कि घर है तो उसको भाड़े पे लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास माल है तो डेफिनेटली आप उसको काम पे लगाइए। अगर आपके पास जीरा, धनिया, हल्दी, गवार है और आप स्टॉकिस्ट है तो डेफिनेटली उसको काम पे जरूर लगाइए। सिमिलरली फैक्टर्स क्या क्या होते हैं तो अनुज ने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया कि क्या क्या फैक्टर्स है, जो वॉल्यूम, प्राइस, ये तो हमें देखना ही है, वेदर कंडीशन क्या है, जिससे एक ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि मार्केट किस ओर जा रहा। और इसी मार्केट के डायरेक्शन को लेकर जगदीप जी ने भी एक ब्रीफ किया कि हमें ग्रिक्स के नाम से घबराना नहीं है। बेसिक जो ग्राउंड लेवल चीजें हैं जो हम जानते हैं कि वॉलिटिलिटी मार्केट में कब आ रही, क्या क्या फैक्टर्स है, इनको लेकर हम ट्रेड बना सकते हैं। और वहीं अगर हम आदित्य जी की बात करें तो बिल्कुल एक छोटे से एक्सेल में हमें एक प्रारूप दे दिया है कि अगर जो भी भाव में अगर आपको बाय या सेल करना है वो सही, जिसको हम बोलते हैं लिटमस टेस्ट, कि जो भी मार्केट में भाव है वो सही है कि नहीं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन की जो क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो काफी अच्छी है। इसके जरिए हम मोर देन 17 स्ट्रेटेजीज ऐसी है जो मार्केट में डायरेक्शन नहीं होने के बावजूद आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आई थिंक इन चीज को सम अप करते हैं तो ऑप्शन एक तरह का बून है हमारी इंडस्ट्री के लिए, खास करके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट जो भी है, फार्मर्स है, चाहे ट्रेडर है, चाहे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है, इनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज बनती रहती है। ऐसी जानकारी के लिए एनसीडीएक्स के साथ, सीपीआई के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम हम ऐसे वेबिनार लेके आते हैं और आपके लिए अच्छे पैनलिस्ट लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, ताकि आपको जो टर्मिनोलॉजी है मार्केट की वो ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी मिलती रहे। तो ओवर टू कविता जी, जो आपने बैटन मुझे दिया था, आई होप मैंने काफी अच्छे से इस चीज को आगे लेने की कोशिश की। कविता। Thank you, Ajay. I think you did a wonderful job. That's why we get experts also as moderators, because it's very important to ask the right questions. You know what questions the audience might have. However, I think at this point of time, there are two questions which are there with the audience, which is one to do with what Aditya kind of asked, which is with respect to, can you please repeat the last? Probably you spoke, Aditya, about the in the money and at the money, strikes, that they are good for buyers. If you can repeat on that, it'll address the issue. ब्रॉडली जैसे अगर 5,000 रुपीज का लेट्स से गोवा का प्राइस है, तो मुझे लग रहा है मार्केट बियरिश है, तो मैं कोशिश करके 5,000 और मे बी 5,100 एट द मनी और मे बी इन द मनी, जिसको बोलेंगे 5,100 के पुट में अगर मैं ट्रेड करूंगा बाइंग करके, स्पेशली क्योंकि अभी जितना लिक्विडिटी के हिसाब से आप अपनी बाइंग जो करें वो इन द मनी में करें तो बेटर रहेगा। तो 5,100 के पुट जो मेरे लिए इन द मनी रहेंगे, और अगर मैं बुलिश हूं तो लेट्स से 4,800 और मे बी 4,900 के कॉल साइड में मैं बाय में जाऊंगा, तो मेरे लिए वो इन द मनी होगा। तो इन द मनी में मुझे पूरा मार्केट का जो अगर मूवमेंट आता है मेरे फेवर में, तो मैं उसको पूरा कैप्चर भी कर पाऊंगा। Okay. Aditya, there is one more question for you. Option to option hedge भी क्या किया जा सकता है? Which I think probably they are trying to ask you whether options can be hedged against futures in case of a big event. बिल्कुल डेफिनेटली मैम, हम कर सकते हैं, बट अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि ये 2 लेग की बात कर रहे हैं, राइट? और मेरा ये मानना है कि बेटर होगा अभी फ्यूचर के साथ ऑप्शन को हेज करें तो ज्यादा इजीली, क्योंकि एक पार्ट ट्रेड हो गया और दूसरा नहीं हुआ तो उसके लिए रिस्क होगा आपके लिए, क्योंकि अभी मार्केट कुछ चीजों में इलिक्विड है। बट मेरा बोलना है कि वो हेजिंग फ्यूचर के साथ या फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो और इजी हो जाएगा, और रिस्की पार्ट पहले ट्रेड करें तो वो यस डेफिनेटली ऑप्शन टू ऑप्शन हेज भी पॉसिबल है, बट वहां पे 2 लेग एक साथ ट्रेड होना थोड़ा सा मुश्किल होता है साइमल्टेनियसली, आपको बिडिंग करनी पड़ेगी सेम टाइम, बट यस अपॉर्चुनिटी है वहां पे भी। Thank you, Aditya. See, I began with thanking the or inviting the panelists, but I'll end with kind of thanking the audience for their overwhelming response. And Ajay, let me tell you, you were a fantastic host in terms of not only getting the right answers from the panelists, but also from getting the right kind of responses and engagement from the audience. I think you've liberated yourself from just being a panelist on this month of Independence Day, and also moved to the other side of the
the table. So I'll, before I move ahead, and thank everyone. I'll actually like Mr. B.K. Sabharwal from CPI to do the honors and kind of thank the audience, thank the panelists, and I'd like to sum up by saying I think this session was a wonderful session in terms of response, in terms of panel questions, in terms of panel contribution, especially Jagdeep, the way he's connected with the ground and the language he talks is so easy to interpret. And thank you, Aditya, for simplifying things for us. Thanks to Anuj for, kind of bringing out the real fundamentals as part of his usual activity and taking out time to contribute to this as well. Also, Nitinji, who's been, instrumental in connecting the market participants to all our new launches and products. And of course, CPI for being our partner to ensure that this event is conducted in its in totality and also with respect to what it needs to deliver. So I'll hand it over to Mr. B.K. Sabharwal for his closing, comments and thanks. Thank you, note. कविता जी, कोई आवश्यकता रह नहीं गई, आपने क्लोजिंग कमेंट्स भी दे दिए, आपने सभी स्पीकर को थैंक्स भी कर दिया। सबरवाल जी, आवाज कम आ रही है बिहार पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि नितिन शाही जी जो हमारे ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं, अनुज गुप्ता जी जो हमारे एग्जीक्यूटिव पार्ट हुआ ही करते थे एनसीडीएक्स के एक लंबे समय तक, आपसे इंदौर में ही मुलाकात ज्यादा हुई। जयदीप गरेवाल जी एक्सपर्ट आपने बताए, और वैसे भी एक लंबा समय जब आप कुंवर की अहमदाबाद में थे तो आप एग्री के एक्सपर्ट कहलाते थे। सीपीआई के बिहाफ पर अंत में इतना ही कहूंगा कि, और फिर सबसे प्रिय अजय केडिया जी जो हमारी सीपीआई के वेस्ट के वाइस चेयरमैन भी हैं और एक अपकमिंग कमोडिटी चैनल्स पर आते ही रहते हैं। अंत में सीपीआई के बिहाफ पर इतना ही कहूंगा कि हम आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स एनसीडीएस के साथ मिलकर करते रहेंगे। मैं एनसीडीएस को ये भी अश्योर करता हूं कि कुछ और अपॉर्चुनिटीज जल्दी एनसीडीएस को मिलने वाली हैं, जो मैं पब्लिक में बात ना कर जब अनुज जी बोल रहे थे तो 126 लोग थे और जब खत्म हुआ तो 78 लोग रह गए थे। परंतु एनसीडीएस को कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे मिल सकती हैं, जिसको मैं अरुण रास्ते जी या कपिल देव जी से बाद में आराम से बात कर लूंगा, और विश्वास सभी मेंबर्स को भी दिलाते हैं, धन्यवाद करते हुए कि आगे हम और भी ऐसे प्रोग्राम हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी की लीडरशिप में करते रहेंगे। तो आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए, मेंबर्स का इतने लार्ज नंबर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। Thank you everyone. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you so much.